Hello everyone, welcome to Pulse Ayurveda. So in today's lecture we are going to study about the bone humerus. सबसे पहले तो सॉरी कि वीडियो अपलोड में लेट हूँ मैं। मोस्टली अब इसके आगे से जो भी लेक्चर्स होंगे या फिर जो भी वीडियोस होंगे वो मैं टाइम टू टाइम अपलोड कर दूँगी। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमरस बोन की। तो जैसे कि हम लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि जो रेड कलर मार्क्ड पोर्शन है वो हमारा ह्यूमरस बोन है। एज वी कैन सी दैट द रेड कलर मार्क्ड पोर्शन इज ह्यूमरस बोन. Humerus is the strongest and the largest bone of our only upper limb, not of our whole body. If there is question which is the strongest and the largest bone of the body, then it's femur, not humerus. The only upper end bone that is strongest and strong. As you can see in this image, anterior and the posterior view of the humerus. As we can see, there is a bulge part that is the head of the humerus, a shaft and a lower end. Lower end also had fossas. Posterior there is one fossa and anteriorly there are two fossa, as we can see in this image. We'll study it in detail. Then now introduction of the bone humerus. The humerus is the longest and the largest bone of the upper limb. It consists of a upper end, a shaft and a lower end. The head of the humerus articulates with the glenoid cavity of scapula to form a shoulder joint. The humerus has three border and three surfaces. We'll study them in details. Upper end of humerus. The upper end of humerus consists of a head, an anatomical and a surgical neck, and the greater and the lesser tubercle. The head is round, forms 1/3 of the spear. It directed medially upward and backward. The head articulates with the glenoid cavity of scapula and forms a shoulder joint. Head is larger than the glenoid cavity. The head is 3 times larger than the glenoid cavity. Then next is anatomical neck. So it is, first of all, it is very short. The line separating the head from the rest of the upper end is called as anatomical neck. मतलब कि जो लाइन अपर एंड को और हेड को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं उसको एनाटॉमिकल नेक बोलते हैं. इट इज कवर्ड बाय कैप्सुलर लिगामेंट. Now next we are going to study about a surgical neck. So surgical neck क्या है basically? So it is the common site of fracture. मतलब mostly humerus में जितने भी fracture होते हैं उसका जो common site है वो surgical neck मानी गई है. So the line separating the upper end from the shaft is called as surgical neck. जो लाइन अपर एंड को शाफ्ट से सेपरेट करती है उसको सर्जिकल नेक ऐसा कहते हैं. उसके बाद में फोर्थ पॉइंट इज ग्रेटर टुबरकल. इट लाइज ऑन द लैटरल पार्ट ऑफ द अपर एंड के लैटरल साइड पे प्रेजेंट होती है. देयर इज अपर मिडल एंड लोअर इम्प्रेशन. लेसर टुबरकल. Now lesser tubercle, it lies on the anterior aspect of the upper end, intertubercular or the bicipital groove. It has the medial and the lateral lip. It lies in between the greater and the lesser tubercle. मतलब कि intertubercular groove या फिर bicipital groove जो होती है ये ग्रेटर टुबरकल और लेसर टुबरकल के बीच में लाई करता है. ठीक है, जैसे कि हम लोग इस इमेज में नेक्स्ट इमेज में देखेंगे वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है इंटरट्यूबल सर्कस. देखो ये इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू दोनों पता है. हेड ऑफ द ह्यूमरस एज वी कैन सी एनाटॉमिकल नेक विच डिवाइड्स द हेड एंड द अपर एंड, ग्रेटर टुबरकल, इंटरट्यूबरकुलर, then bicipital groove, surgical neck which separates the head of the humerus or the upper end of the which separates the upper end of the humerus from the shaft, as we can see in this image. इस इमेज में बहुत अच्छी तरीके से बताया. इस इमेज में और सब एकदम क्लियरली एक बार इस इमेज को देख लूँगे तो आपको सब पता चला. अब हम लोग शाफ्ट के बारे में बात करें. इट्स अपर हाफ इज राउंडेड एंड द लोअर हाफ इज ट्रायंगुलर. इट हैज 3 बॉर्डर एंड 3 सर्फेसेस. 3 बॉर्डर्स कौन से उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर बॉर्डर की. Anterior border, it starts from the anterior part of the greater tubercle and it goes downward up to the lower end. ठीक है, its upper 1/3 forms the lateral lip of the intertubercular sulcus. Its middle forms the anterior margin of the deltoid tuberosity and its lower half is smooth. Now medial border. Its upper 1/3 part forms medial lip of intertubercular sulcus. There is a rough strip in its middle part. Inferiorly continues with the medial supracondyle ridge. मिडल पार्ट में रफ स्ट्रिप प्रेजेंट होती है. अपर 1/3 जो होता है वो मेडियली फॉर्म करता है इंटरट्यूबरकुलर सर्कस की और इन्फीरियर कंटिन्यूस विद द मिडियल सुप्राकॉन्डाइल रिज. लोग कैसे याद रखेंगे मेडियल लिप लैटरल लिप? तो देखो मेडियल बॉर्डर, मेडियल लिप, लैटरल बॉर्डर. इट इज प्रोमिनेंट ओनली एट इट्स लोअर एंड. लैटरल बॉर्डर जो होती है वो अपनी लोअर एंड पे प्रोमिनेंट है जहाँ पे लैटरल सुप्राकॉन्डाइल रिज फॉर्म होती है. उसके बाद में इट्स मिडल पार्ट इज इंटरप्टेड बाय रेडियल और स्पाइरल ग्रूव. सो जो लैटरल बॉर्डर होती है ना उसके मीडियल पार्ट पे एक रेडियल या फिर स्पाइरल ग्रूव है. अब हम लोग बॉर्डर्स कैसे पहचानेंगे ह्यूमरस पे? ऐसे भी एक क्वेश्चन आता है तो उसको पहचानने के लिए ये ग्रूव्स वगैरह बताए गए तो इनसे हम लोग पहचान सकते हैं. जहाँ पे रेडियल ग्रूव है वो हमारी लैटरल बॉर्डर होंगी. उसके बाद में सर्फेसेस की बात करेंगे तो फिर 3 सर्फेस बताइए. सबसे पहले एंटेरो मेडियल सर्फेस. It lies between anterior and the medial border.
ठीक है। नेक्स्ट इट्स अपर वन थर्ड इज नैरो एंड फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबुकुलर सल्कस। इट्स मिडल पार्ट हैज ए न्यूट्रिएंट फोरामेन नियर द मेडियल बॉर्डर। इसके मिडल पार्ट पे न्यूट्रिएंट फोरामेन है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सर्फेस की हम लोग बात करेंगे, दैट इज एंटेरोलैटरल सर्फेस। इट लाइज इन बिटवीन द इंटीरियर एंड द लैटरल बॉर्डर। द अपर हाफ इज सर्फेस इज कवर्ड बाय डेल्टॉइड मसल, ठीक है। अपर हाफ जो वो डेल्टॉइड मसल से कवर है। उसके बाद में वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी इज मार्क जस्ट अबव इन इट्स मिडल। उसके मिडल पे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी वी शेप होती है, एक डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी जो कि वी शेपली मार्क होती है। उसके बाद में पोस्टीरियर सर्फेस की बात करेंगे। इट लाइज बिटवीन द मेडियल एंड द लैटरल बॉर्डर। इट इज लार्जर and broader than any other surface. Its upper one third is crossed by oblique ridge and middle one third has a spiral or a radial groove. जैसे कि हमने बात की लैटरल बॉर्डर पे भी सेम है, उसी तरह पोस्टीरियर सरफेस पे भी हम बात करें रेडियल और स्पाइरल ग्रूव होंगे, ठीक है। और मोस्टली ये कि अब इस इमेज में हम लोग एकदम क्लियरली मार्क किया हुआ इस इमेज में आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा ये जो लैटरल बॉर्डर दिख रही है। देन एंटेरो लैटरल सर्फेस ऑफ द ह्यूमरस येलो कलर से मार्क है, ग्रीन कलर से मार्क्स मेडियल बॉर्डर है। देन ग्रेटर ट्यूबरकल की क्रिस्ट बताई गई, एंटेरो मीडियल सर्फेस भी बताई गई है, ठीक है। जो मार्क्ड है बड़ी बड़ी की बॉर्डर्स है और जो उनके बीच की सर्फेस है ना उसे सर्फेस माना गया। नेक्स्ट इमेज जैसे कि इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं पोस्टीरियर सर्फेस जो रेड कलर से मार्क किया एंड द मेडियल बॉर्डर वी कैन सी एंड द लैटरल बॉर्डर एज वी कैन सी। इस तरीके से बॉर्डर और सरफेसेस की ह्यूमरस की इस इमेज में बहुत अच्छी तरीके से है। इस इमेज को गो थ्रू कीजिए वापस चाहे तो मैं ये जो पीपीटी या फिर जो स्लाइड है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है इस पर मैं अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से इसको आराम से देख के पढ़ सकते हो आराम से। नेक्स्ट हम लोग लोअर एंड की बात करेंगे। लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस इज इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्डाइल विच एक्सपांड्स फ्रॉम साइड टू साइड। लोअर एंड जो है ना वो एकदम स्ट्रेट या फिर राउंडेड वगैरह नहीं है, वो एक्सपांडेड है साइड टू साइड, ठीक है। उसके पास दो पार्ट है, इट हैज आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर सरफेस और पार्ट। सबसे पहले आर्टिकुलेटिंग सरफेस की बात करेंगे। आर्टिकुलेटिंग मतलब कि एक दूसरे से जुड़ने वाली। Articulates and capitulum articulates with the head of the radius. A trick to remember it as a CR, capitulum and radius. Trochlea, it is pulley shaped. It articulates with the notch of the ulna. So we can remember it as TR. ठीक है, CR and TR. Next we will study about the non-articulating surface. सबसे पहले उसमें medial epicondyle. It is prominent bony projection on the medial side. Next lateral epicondyle. It is smaller than the medial epicondyle. Its anterolateral part has a muscular impression. Now next we'll see about medial supracondyle ridge, lateral supracondyle ridge. यहाँ पे बताया गया है कि शार्प मेडियल मार्जिन अबव द लोअर एंड जो होती है वो मेडियल सुप्राकॉन्डाइल और लैटरल रिज के अबव जो लोअर एंड पे मार्जिन होगी वो लैटरल सुप्राकॉन्डाइल रिज। लैटरल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस इज द एंड एज द लैटरल सुप्राकॉन्डाइल रिज। ये सब रिज के बारे में दिया है, मेडियल सुप्राकॉन्डाइल, लैटरल सुप्राकॉन्डाइल। आगे इमेजेस आएंगे उसमें बहुत अच्छे से हमें मार्क किए हुए तो हम बहुत अच्छे। उसके बाद में फोसा जो मैं बात कर रही थी वो यहाँ पे कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा। कोरोनॉइड फोसा अ डिप्रेशन जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रॉक्लिया ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन इन द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना accumulates the कोरोनॉइड फोसा। रेडियल फोसा डिप्रेशन जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैपिचुलम। कैपिचुलम के ऊपर एंटीरियर एस्पेक्ट पे होगी रेडियल फोसा और कोरोनॉइड ट्रॉकिया के एंटीरियर एस्पेक्ट पे कोरोनॉइड फोसा होगा। सो ड्यूरिंग उसके बाद में ओलिक्रिनॉन फोसा डिप्रेशन जस्ट अबव द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रॉक्लिया। ट्रॉक्लिया के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ड्यूरिंग एल्बो एक्सटेंशन द ओलिक्रिनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना accommodates the olecranon fossa as we can see in this image. Now as we can see that there is olecranon fossa, lateral epicondyle, trochlea, medial epicondyle, capitulum, radial fossa and the coronoid fossa in this image. Now in the next image we can see all the labeling of the bone humerus: head, retor tubercle, anatomical neck, lesser tubercle, intertubercular sulcus, crest of lesser tubercle, crest of greater tubercle, surgical neck, deltoid tuberosity, lateral supracondyle ridge, medial supracondyle ridge, lateral epicondyle, radial fossa, coronoid fossa, medial epicondyle, capitulum and trochlea. These images are मतलब ये इमेज आपकी टोटली बाय हार्ट याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में ड्रॉ करनी पड़ती है जनरल फीचर्स की भी एंड मसल अटैचमेंट की भी। मसल अटैचमेंट ऑफ ह्यूमरस ये डायग्राम है। डायग्राम में बहुत से मसल अटैचमेंट दिए जो कि ब्लू कलर से होगा वो इंसर्शन होगा, रेड कलर से होगा वो ओरिजिन होगा। हम इसमें देख सकते हैं सबस्कैपुलैरिस, सुप्रास्कैपुलर, लैटिस डॉर्सी, टेरेस मेजर, टेरेस माइनर, pectoralis major, deltoid, coracobrachialis, brachialis, brachioradialis, extensor carpi radialis, longus, common flexure origin. Now ossification from one primary and 7 secondary centers of the ossification.
Now next we'll see about the blood supply and nerve supply of the humerus, then clinical anatomy, last one. So now we'll see about the blood supply and the nerve supply. So the blood supply are axillary artery, anterior and posterior circumflex humeral artery, arcuate artery, nutrient artery, etc. Nerve supply are axillary nerve, radial nerve and ulnar nerve. As we can see in this next upcoming diagram or the image, we can see the nerve and the blood supply of the bone humerus. ओके, यहाँ पे हम लोग रेडियल आर्टरी देखेंगे, अल्नर नर्व देखेंगे, मेडियल नर्व देखेंगे, उसके बाद में इमेजेस में दिया है ये सारी चीज़ें। इसमें ये जो भी आर्टरीज और ब्लड सप्लाई की नर्व्स, जो भी मैंने ब्लड सप्लाई के आर्टरीज और नर्व सप्लाई के जो भी नर्व्स बताई गई, ये सारी सिर्फ मेन ब्रांचेज वी कुड टेल। बाकी और भी आर्टरीज है जो कि उनसे कनेक्टेड है, बाकी और भी नर्व्स है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू लेके जो इंपॉर्टेंट है होता है, मतलब मेन ब्रांचेस वाली, उसके बारे में बताया। शायद में क्लिनिकल एनाटॉमी हमने सबसे पहला देखा था जब हम लोगों ने सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस पढ़ा था, तभी हमने बात की थी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रैक्चर्स जब भी ह्यूमरस बोन में होंगे तो सबसे ज़्यादा सर्जिकल नेक पे होंगे। इस इमेज में हम लोग ध्यान से देख सकते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया कि कैसे ह्यूमरस के यहाँ पे हमारे शोल्डर जॉइंट जो होता है ना, हमारे शोल्डर जॉइंट, वहाँ से जब भी कभी हम लोग मतलब एक कभी गिरे हो या फिर एक्सीडेंटल केसेस में एनीथिंग, तो वहाँ पे फ्रैक्चर होते हैं। उसके बाद में ये सारी क्लिनिकल एनाटॉमी बताई। वोल्कमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर, ये इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यू के लिए भी पूछा जाता है कि कौन से बोन के थ्रू हम लोगों को ये फ्रैक्चर देखने मिलता है। तो इट्स वोल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्शन, इट्स ड्यू टू द ह्यूमरस बोन. Now next fracture affecting the surgical neck can damage axillary nerve, lead to the paralysis of the deltoid muscle. ये सब कुछ बताया गया। उसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क है आप लोग के लिए। जैसे मैंने बोला था, जो ये इमेज या फिर ये पिक्चर यहाँ पे, इसमें सिर्फ नंबरिंग की आप लोग को सिर्फ बिना देखे, डायग्राम को बिना देखे आपको इसको लेबलिंग करनी है। एंड एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच